Yes. So I want to tell you one thing. कल अपना मॉर्निंग में लेक्चर रहेगा, कल अपना आफ्टरनून का लेक्चर नहीं रहेगा. And the holiday begins. तो आज का सेशन, कल एक सेशन रहेगा मॉर्निंग में, कल आफ्टरनून से छुट्टी. ठीक है. हाँ यस और फिर 3 तारीख को सुबह 9:30 बजे. आई वॉन्ट यू ऑल रेडी, गेट अप. ओके यस. चलो अभी अपना ऐसे 505 लिखना बाकी है. कम ऑन लेट्स स्टार्ट. जॉटिंग डाउन करेंगे and then we have 2 essays more on the target for the day. Yes. खत्म होने के बाद. अच्छा 31st सेलिब्रेशन की तैयारी के लिए छुट्टी दो, फिर 31st के लिए छुट्टी दो. मैम नया साल है इसलिए छुट्टी दो, है ना. फिर पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो यस कम ऑन. हाँ लिखना है. आई जस्ट हाइड माई सेल्फ ताकि जो देख रहे हैं उनको दिख जाऊं मैं. यस कम ऑन. यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? हेडलाइन. ऐसे 505 लिखा आपने. एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज. फर्स्ट पॉइंट मीनिंग. Audit evidence obtained by auditor as a direct written response from a third party in paper or electronic or other form. Next headline. Types of external confirmation requests. Types of external confirmation requests. First, positive confirmation request. Very good. Under that, write down. Request, Papa. First, positive confirmation request. Under that, it asks the third oblique confirming party. It asks, उसका explanation बता रही हूँ मैं. It asks the third ऑब्लिक कंफर्मिंग पार्टी, चाहे वो थर्ड पार्टी कहे चाहे कंफर्मिंग पार्टी कहे, बात एक ही है. थर्ड ऑब्लिक कंफर्मिंग पार्टी टू रिप्लाई टू द ऑडिटर इन ऑल केसेस whether the third party agrees or disagrees. Whether the third party agrees or disagrees. Next point. It is more persuasive. It is, next point, positive request का ही next point here. It is more persuasive and more reliable as an audit evidence.
नेक्स्ट टाइप कौन सा है? नेगेटिव confirmation request. Under that first point, it asks the third party to respond only if there is disagreement. Only if there is disagreement with the information provided in the request. Next point, it is less persuasive than the positive request. Next point, auditor should use them only if first point, risk of misstatement is low. Next point, internal control is effective. Small amounts are involved. Low exceptions, small amounts are involved. Low exceptions are expected. Low exceptions are expected. Third, non-response. First point, it means third party fails to respond to which kind of request? Positive request. Full stop and continue. This request is returned undelivered to the auditor. Is returned undelivered to the auditor. बराबर है ना? भेजने वाला कौन है? Auditor. तो उसको return हो जाएगा. Next point. As such, auditor shall perform alternate procedures. Full stop and continue. On doing so, if sufficient and appropriate audit evidences, sufficient and appropriate audit evidences are not available, he should modify his audit opinion. He should modify his audit opinion. Next, exceptions. First point, it means
A response indicating disagreement of third party. Next point. Of third party. Next point. Auditor shall investigate exceptions so as to ascertain, investigate exceptions so as to ascertain whether misstatements are present or not. अगर वो नहीं मान रहे तो उसकी वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है? Done? Okay? Yes. I want you to take this down. Reliability of response. Reliability of response. एक्सप्लेनेशन में उसके पहले ये लिखने से पहले लिखो, एक लाइन लिखो. ऑडिटर needs to decide the sufficiency and appropriateness of confirmations. बराबर है ना? Comma. As such, he shall consider following factors. He shall, as such, he shall consider following factors. बुक में जो स्टैंडर्ड है वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से है, बट मैंने इस सीक्वेंस को थोड़ा सा शफल किया है क्योंकि कुछ लॉजिकल रीजन तो होना चाहिए. देयर शुड बी अ लॉजिकल फ्लो कि आपके सामने ऐसे 505 तो मैम ने पहले क्या बताया था, उसका मीनिंग, फिर टाइप्स, बराबर है ना. फिर एज एन एविडेंस उसको हम कैसे क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे. फिर अगर अब ठीक है, अब हमने बैकग्राउंड समझ लिया, अब अगर हमको कंफर्मेशन भेजना है तो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस. तो चलो, टेक डाउन द पॉइंट्स व्हिच अपीयर ऑन द स्क्रीन. Done? Okay, sorry. 510 सीखेंगे, लिखेंगे और 520 सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी. ओके, देन वी कैन राइट इट इन द नेक्स्ट सेशन, जैसे कि हमने सुबह किया बिल्कुल वैसे ही. ऐसे 501 बहुत बड़ा है, उतना बड़ा और कोई ऐसे तो है नहीं वैसे, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो. अच्छा, सही है बॉस. बाय द वे, आपका नाम क्या है? और आपका? हाँ, और आपका नाम? मैं प्रदीप ही याद रखती हूँ हमेशा आपका नाम. दीप तो है, प्र हो कि संदीप हो, है ना? वो आई थिंक मुझे नोमोफोबिया है, मुझे जल्दी से नाम ही नहीं याद रहते.
आपको लगता है मैं उनको भूलूंगी? दैट इज द लास्ट थिंग ऑन अर्थ जो होगा। डन? हाँ हाँ, करो ना करो ना। सच्ची वो मेरे लिए होमवर्क है। हाँ, उनका तो दिखता ही है। नहीं वैसे नहीं, मुझे पहले से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक्चुअली ना 2 साल लॉकडाउन ने ना लोगों से मिलने की ऐसे आदत ही चली गई है। जब ओपन हुआ था ना सब कुछ, तो स्टार्ट में तो कैसे कुछ अजीब ही लगता था। और मैं तो इतनी सोशल हूँ, है उतनी सोशल हूँ, मुझे रोज एक बार घर से बाहर पढ़ना ही पड़ता है। आई कैन नॉट स्टे 24 आवर्स एट माई प्लेस, नो, पॉसिबल ही नहीं है। डन? अब तो हो गया होगा। ओके 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 ओके। लोग बोलते हैं ऑडिट बहुत बोर है, मैं उनको बोलती हूँ मेरे बच्चों को पूछो बोर है कि इंटरेस्टिंग है। हाँ, आई वाज सुपर वुमन with 2 kids. Watermark. अच्छा जी, वाह वाह वाह। यस, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर देखेंगे। कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है? 3 स्टेप्स। यस, कम ऑन। यस, लिख के लीजिए, चलो। हाँ, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। स्टेप 1, डिटरमाइन इंफॉर्मेशन, designing confirmation, external confirmation procedure। उसके अंडर फर्स्ट, हाँ, स्टेप 1, डिटरमाइन इंफॉर्मेशन टू बी सॉट। ब्रैकेट में लिखो अकाउंट बैलेंसेस और एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और साइड अग्रीमेंट एक्सेट्रा। साइड अग्रीमेंट, साइड SIDE, साइड एग्रीमेंट। स्टेप 2, सिलेक्ट appropriate confirming party। Step 3, design confirmation request। और फिर इसको आपको भेजना भी है, तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, स्टेप 4 कर देते हैं। स्टेप 4, सेंडिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सिर्फ बना के घर पे रखा तो कोई मतलब नहीं है ना। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ओके। अब हमने देखा है क्या कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को। यस, सो नेक्स्ट हेडलाइन, फैक्टर्स to consider while designing confirmation requests. First,
permission from management or management authorization. Permission from management or management authorization. Next. Risks of material misstatements. Including fraud risks. Fraud risks. Next point, assertions. Fraud and risks. Assertions. Method of communication. Next point. Next point. Next point. Method of communication. Next point. Prior experience. And the last point. The ability to respond of the confirming party. And the last headline. Management refuses to allow auditor to send confirmation request. स्क्रीन पे दिख रहा है, एज इट इज कॉपी करना है आपको. कौन से पॉइंट्स कॉपी करने हैं? यस. नेक्स्ट हेडलाइन है. ऐसे क्यों कर रही हो तुम? हाँ, आज किसी का मूड नहीं लगता है. छुट्टी कल से है, आज से नहीं. वो भी सुबह का लेक्चर होने वाला है. ऐसा ये कुछ नहीं होने देने का. हाँ. क्या? डन. जेन्युइन मतलब क्या होना चाहिए? यस, ट्रू. It is based on facts. Reasonability is based on judgment. बराबर है ना? Okay. Done now? Yes. Okay.
Shall we begin? अब नो बोलने वाला कौन है? एक मिनट है बच्चों, मैं एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कैमरा ऑन करना है. यस, हियर इट इज. यस, चलते हैं अगले ऐसे की तरफ. ओके, ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स. ओके, अब ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स का मतलब क्या है ये समझिए. इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स में आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी. ओके, और उस एग्जांपल्स के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डज दिस एसे वांट टू स्पीक अबाउट. ठीक है, ओके. यस, तो चलो इनिशियल ऑडिट. ओके, यस. अब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स के मतलब क्या क्या है? आज ना थोड़ा पेन और ये लैग भी हो रहा है और प्रॉब्लम भी कर रहा है. दूसरे लेक्चर्स में हुआ था क्या प्रॉब्लम? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स. ओके, आज भी मैं 510 रिवाइज. अरे वो ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है. यस, नाउ ओके. यस, अब हम जब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? ये दो चीजों पे फोकस करते हैं. किन दो चीजों के बारे में फोकस करते हैं बच्चों? कि प्रायर पीरियड का जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था वो नॉट ऑडिटेड. मतलब आज तक आपका ऑडिट हुआ ही नहीं है. नहीं तो आज तक आपका ऑडिट हुआ था बट सिर्फ पिछले साल आपका ऑडिट नहीं हुआ है. ओके, यस, इस साल आपका ऑडिट होने वाला है. देन और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? प्रायर पीरियड. ओके, यू हैड अनदर ऑडिटर और इस साल आप अनदर ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो. ओके, इसका मतलब क्या है? पहले हम लोग ये चीज समझने की कोशिश करते हैं. अज्यूम करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2021 आप देख रहे हो. ओके, अब आपको इसका ऑडिट करना है. इसका ऑडिट करना या नहीं करना ये किस पे डिपेंड करता है? टर्नओवर पे, हाँ या ना? मानो कि इसका टर्नओवर है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है और अज्यूम करो बच्चों कि इसका टर्नओवर है 40 लाख. ओके, तो क्या उसको 44 AB के अंडर टैक्स ऑडिट लिमिट, ओके, यस, अट्रैक्ट होती है या नहीं होती? नहीं होती. ओके, यस. सो वो क्या हो रहा है ना, पेन का जो डिटेक्ट हो रहा है ना, डिटेक्टर इज नॉट एबल टू ऑपरेट प्रॉपरली. हाँ, उसका टाइम फ्रेम प्रॉपर नहीं है. समझ में आया? इसलिए मैं लिख कहीं और रही हूँ, जा कहीं और रहा है. वो वैसा हो रहा है. जाना तो लंदन, पहुंच गए टोक्यो. ये देख, ऊपर कहीं तो जा रहा है. लैग हो रहा है, वो बात अलग है. हाँ, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स चलो देखा जाएगा. ओके, ट्राई बट डोंट क्राई वाला सीन है. नो प्रॉब्लम. यस, प्रायर पीरियड एफएस नॉट ऑडिटेड, या तो प्रायर पीरियड एफएस. अब तो मार खाएगा, अब तो मार खाएगा. प्रायर
prior period FS audited by another auditor. ओके इसका मतलब क्या है? मानो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2021 देख रहे हैं, ओके इसका टर्नओवर 40 लाख का है, तो आप बताओ सेक्शन 44 AB के अंडर क्या आपको इसका ऑडिट करने की ना जरूरत है? यस और नो? नहीं, आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, ये साल खत्म हुआ, अगला साल स्टार्ट हुआ। ओके ठीक है, अब अगले साल में आपके बिजनेस में बहुत पिकअप लिया और आपका टर्नओवर 240 लाख हुआ। ओके अब मुझे बताओ क्या आपको सेक्शन 44 AB के अंडर ऑडिट करने की जिम्मेदारी है या नहीं है? है? ओके यस, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल आपका ऑडिट मैं बहुत ध्यान से सिलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं। हाँ, इसका मतलब क्या है? यस इसका मतलब क्या है कि इस साल में आपका ऑडिट नहीं था पर अगले साल आपका ऑडिट हो रहा है, बराबर है ना? मतलब 2021 ऑडिट नहीं, 21-22 ऑडिट हाँ, बराबर है कि नहीं? ओके अब 31 मार्च 21 के जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे क्या वो 1/4/22 में ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे? यस और नो? पर हम कैसे कर सकते हैं ऐसा? हम कैसे कर सकते हैं ऐसा? पिछले साल का तो ऑडिटेड ही नहीं था। फिर अब मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग बैलेंसेस में, हाँ अगर ओपनिंग बैलेंसेस में ही कुछ गलती है पर बाकी इस साल में आपने ट्रांजैक्शंस करेक्टली रिकॉर्ड किया है तो क्या क्लोजिंग बैलेंस करेक्ट रहने की गारंटी है? 100% नहीं रहने वाले, बराबर है ना? ओपनिंग में ही गलती है तो, बराबर है ना? पर ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ है क्या वो पिछले साल के लिए है कि इस साल के लिए है? इस साल के लिए है, तो वो पिछले साल का देखेगा कि इस साल का देखेगा? पर अभी इस साल का देखते देखते अगर पिछले साल के ओपनिंग बैलेंसेस में गलती होगी तो क्या इस साल के बैलेंसेस भी अफेक्ट होंगे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसलिए उसको क्या करना है? इसलिए उसको क्या करना है? ये जो अनऑडिटेड एफएस है, अभी आई डोंट वांट टू इरेज, चाहिए तो मुझे मर्सिडीज। ओके यस, तो अभी यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो अनऑडिटेड है, तो पर ऑडिटर को तो अपना काम करना पड़ेगा, बराबर है ना? ऑडिटर को अपना काम करना पड़ेगा, तो ऑडिटर को देखना है कि अगर फर्स्ट अगर यहाँ पे जगह नहीं हुई ना तो मैं मैनेज करूंगी। हाँ, अगर वो आइटम सिग्निफिकेंट है ओके तो उसके ओपनिंग बैलेंस को आप एज इट इज नहीं ले सकते, आपको उसका एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू गो इनटू डिटेल्स एंड चेक फॉर इट। समझ में आया? ओके फिर आप मैनेजमेंट को बोलो कि मैनेजमेंट आप हमको लिख के दो कि ओपनिंग बैलेंसेस में जो भी गलती होगी इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, इस साल में जो भी गलती हुई है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। राइट मतलब मैनेजमेंट से आपको रिप्रेजेंटेशन लेना है। ओके यस, सो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट रिपोर्ट में भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि सुनो यूजर्स, मैं सिर्फ इस साल के लिए जिम्मेदार हुआ, पिछले साल का एफएस के लिए ओके ओपनिंग बैलेंसेस अनऑडिटेड है, उसमें कुछ गलतियां होंगी, तो ऐसा हो सकता है मुझसे गलती हुई है, मुझसे रह गया है, बराबर है कि नहीं? यस, ये कहां पे लिखेगा ऑडिटर? ऑडिट रिपोर्ट में कहां पे? कम ऑन, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। क्या हम किसी मैटर पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? तो कौन से पैरा में जाएगा? अदर मैटर पैराग्राफ में। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके यस, तो कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा?
ऑडिट रिपोर्ट में OM पैरा, अदर मैटर पैरा में आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर? अंडरस्टैंडिंग? ओके, यस, ये है प्रायर पीरियड FS नॉट ऑडिटेड, इसका मतलब। ओके, दूसरा केस क्या है? प्रायर पीरियड FS ऑडिटेड बट बाय another auditor, by another auditor। इसका मतलब क्या है? 2021 में प्लीज एडजस्ट करो। ओके, आई जस्ट टेल यू ओरली, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है सिस्टम। 2021 में XYZ कंपनी ऑडिटर थे, बट आप उनके काम से खुश नहीं हो, इसलिए आप इस साल नया ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती हो, ABC एंड कंपनी। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके, यस। सो दीज आर द टू केसेस। इसके नाम अगर आप देखोगे, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, आप पहली बार इसका ऑडिट कर रही हो, फर्स्ट टाइम आप इसका ऑडिट कर रहे हो, पहली बार, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, इसलिए ऐसे का नंबर क्या है? SA 5110, because it is an initial audit engagements। इनिशियल है एंगेजमेंट किसका? ऑडिट का। समझ में आया? ओके, यस। अब इसके दो केसेस मैंने क्या बताया कि लास्ट ईयर ऑडिट नहीं है बट दिस ईयर ऑडिट है। एंड द सेकंड केस, लास्ट ईयर ऑडिटर कौन थे? मिस्टर ए। इस साल मिस्टर ए नहीं है, मिस्टर बी ऑडिटर है। क्लियर? यस, ये दो केसेस हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ओके, यस। अब जब हम ओपनिंग बैलेंसेस की बात करते हैं तो क्या होता है? यस, क्यों? यस, अब आ रहा है? ओके, अब ओपनिंग बैलेंसेस जो होते हैं उसमें क्या होता है? इस साल के ट्रांजैक्शंस ऐड होते हैं, हाँ या ना? इस साल के ट्रांजैक्शंस ऐड होने के बाद क्या होता है? यस, क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, बराबर है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? यस, ओके, ठीक है। अब अगर ओपनिंग बैलेंसेस ऑडिटर को, सी इट इज एन इनिशियल ऑडिट, ऑडिटर पहली बार ऑडिट कर रहा है, तो क्या ऑडिटर को फूक फूक के कदम रखना है? हाँ। जो ओपनिंग बैलेंस वो लेगा, ओके, वो करेक्ट है, उसको वो ले सकता है, उसको वो अडॉप्ट कर सकता है, उस पर वो भरोसा रख सकता है, क्या उसको उसके लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लगेगा? लगेगा। सो ही हैज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस। क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंस ही गलत हो तो इस साल के ट्रांजैक्शन चाहे सही रिकॉर्ड हो चाहे गलत रिकॉर्ड हो, जवाब हमेशा क्लोजिंग बैलेंस हमेशा मिसस्टेटेड ही रहेगा, गलत ही रहेगा। क्लियर? ओके, यस। तो अगर आपको यू हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, ओके, यस, अगर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, इसका मतलब आपको क्या चेक करना है कि क्या ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट्स है या नहीं। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, आप इस साल का ओपनिंग बैलेंस ले रहे हो, उसमें मिस स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए। क्लियर? मिस स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए। अब नेक्स्ट मैं जो बताने जा रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब आपने पिछले बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, हर बार जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो क्या आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करने की जरूरत है? तो आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज पिछले साल अडॉप्ट करी थी, वही अकाउंटिंग पॉलिसी आप इस साल भी कंटिन्यू कर रहे हो। समझ में आया? इस साल भी क्या कर रहे हो? कंटिन्यू कर रहे हो। और अगर उसमें आप कोई चेंजेस करते हो तो आपको वो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछली बार आपने WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, बट इस बार आप कौन से मेथड से जाना चाहते हो? इस बार आप WDV नहीं, SLM मेथड से जाना चाहते हो। समझ में आया? ओके, इन दैट केस आपने जो भी चेंजेस किए हैं, वो आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा? यस, कम ऑन, वो आपको अच्छे से
बताना पड़ेगा, जो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वट एवर चेंजेस हैव बीन मेड टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अगर हम ऐसे 510 की बात करें तो ऐसे 510 दो चीजों के बारे में बात करता है। 1, opening balances should not contain any material misstatements, and number 2, accounting policies which are already adopted should be consistently applied, and if changes in any should be disclosed properly। समझ में आया क्या? Yes, everyone? Okay? Yes, changes should be properly accounted, presented and disclosed as per applicable financial reporting framework। Clear? Yes? Okay? Yes। अब ये ओपनिंग, एक मिनट, यस, ऐसे 510। ओके, यस, यहाँ पे मैं आपको, यस, हमने क्या देखा कि ऐसे 510 दो केसेस में एप्लीकेबल होता है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स, अगर पिछले साल ऑडिट नहीं किया होगा तो, या पिछले साल किसी और ने ऑडिट किया होगा तो, ये हमारा पहला साल है ऑडिट का, तो ऐसे 510 एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसे 510 दो चीजों के बारे में बोलता है क्या? नंबर 1, यस, कम ऑन, opening balances should not be materially misstated. The accounting policies have been consistently applied and changes, if any, are properly accounted, presented and disclosed as per applicable financial reporting framework। Clear? ओके, यस। अब ऑडिटर को क्या क्या प्रोसीजर्स करने हैं? व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय ऑडिटर? ओके, यस। अब चेक करना है, उसमें हमने देखा है हमको क्या चेक करना है? ओपनिंग बैलेंस चेक करना है, ओके, और अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करना है, बराबर है ना? ये तो ऑब्जेक्टिव में ही बताया है। और अगर पिछले साल किसी और ऑडिटर होगा तो क्या प्रीडिसेसर का ऑडिट रिपोर्ट भी चेक करना जरूरी है? यस, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंसेस चेक करना मतलब क्या करना? यस, आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल है उसको लो, उसको रीड करो, उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस है क्या देखो, मटेरियल आइटम्स को आइडेंटिफाई करो, मटेरियलिटी लेवल को सेट करो। समझ में आया? ओके, यस। सो रीड प्रायर ईयर्स, मतलब आपके पास जो लेटेस्ट अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट है, बराबर है? यस। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्लोजिंग बैलेंस मतलब आपकी ओपनिंग बैलेंस, बराबर है ना? मतलब इट शुड बी करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड, बराबर है कि नहीं? राइट? मतलब आप सबसे पहले क्या करोगे? आपके पास टैली का सिस्टम दे दिया है सपोज आपके क्लाइंट का, ओके, यस, और आपको क्या करना है? आपके पास हार्ड कॉपी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ओके। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो कॉलम्स होते हैं, एक लास्ट ईयर, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर, यस और नो, बराबर है ना? तो आपके वो बैलेंसेस आपके सिस्टम में ओपनिंग बैलेंसेस के साथ मैच करना है, ओके। कहीं ब्रॉड फॉरवर्ड करते करते 6 लाख का 60,000 तो नहीं हो गया, बराबर है? कहीं कुछ मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है, क्या वो करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है? समझ में आया? ओके, यस। कुछ आइटम जो अनकरेक्टेड, याद आया क्या? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, बराबर है ना? या प्रायर पीरियड का कोई आइटम रहेगा तो क्या AS5 बोलता है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो? यस, प्रायर पीरियड आइटम्स, यस, AS5 याद आया कि नहीं? क्या बोलता है? यू शुड सेपरेटली डिस्क्लोज इट, जो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो, ओके, यस। एंड कोरिलेट ओपनिंग बैलेंस विद प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन करंट ईयर, ओके, यस। और अगर यहां पे कुछ वर्ड्स मिसिंग है वो मैं लिख देती हूं। Obtain additional evidence if opening balances materially misstated। ओके, आपको एडिशनल प्रोसीजर्स कब करने हैं? अगर आपको लगता है कि ओपनिंग बैलेंसेस मटीरियली मिसस्टेटेड है तो, ओके, यस। इफ डाउट्स एज टू मिसस्टेटमेंट, इन दैट केस यू हैव टू कम्युनिकेट with management and TCWG, okay? So come on, tell me,
क्या क्या प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करोगे? नंबर 1, कम ऑन, रीड प्रायर पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, यस और नो? नंबर 2, क्या करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है या नहीं वो चेक करो, बराबर है कि नहीं? नंबर 3, प्रायर पीरियड आइटम्स कुछ है क्या? ओके, यस। एंड नेक्स्ट, इस साल में उसको कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस, स्पेशल रेलेवेंस है क्या? अगर मटीरियली मिसस्टेटेड है तो एडिशनल प्रोसीजर्स करो, अगर आपको डाउट्स है तो कम्युनिकेट करो मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी से। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब अकाउंटिंग पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो हमको क्या चेक करना है? क्या पिछले साल का अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाइड है क्या? अगर कोई चेंजेस है तो कॉम्प्लायंस विद एफआरएफ, इसका मतलब क्या है? प्रॉपरली accounted, presented and disclosed. Clear everyone? Okay? Yes. और प्रीडिसेसर का जरूरत पड़े तो आपको ऑडिट रिपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर प्रीडिसेसर ने मतलब पिछले ऑडिटर ने मॉडिफिकेशन किया है, मतलब क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया है, तो क्या उन आइटम्स रीजंस देखना जरूरी है? हाँ। क्या हमको प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है? हाँ। क्या हम उसको पूछ सकते हैं? हाँ। क्लियर? ओके, यस। देन इन दैट केस यू हैव टू इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट करो? कि उस क्वालिफिकेशन का इफेक्ट इस साल क्या होगा। समझ में आ रहा है? ओके, यस। देन आगे, अब हमने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, अब हमको इन्हीं 3 चीजों के बारे में क्या करना है? रिपोर्टिंग करना है। ओके, यस। अब अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस के लिए एविडेंस ही ना मिल पाए तो लिमिटेशन ऑन स्कोप आ गया। यस, तो आपको कौन सा ओपिनियन देना है? क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, बराबर है? ठीक है। अगर आपको लगा कि मिस स्टेटमेंट्स है और उस मिस स्टेटमेंट्स का हम कुछ नहीं कर सकते तो क्वालिफाइड एंड एडवर्स। ठीक है। अब अगर कंसिस्टेंटली नॉट अप्लाइड है या कंसिस्टेंटली एडजस्टेड या डिस्क्लोज नहीं है, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन। एंड अगर मॉडिफिकेशन है और वो मॉडिफिकेशन आज भी मटेरियल है करंट ईयर में भी, तो क्या हमको इस साल का ऑडिट रिपोर्ट भी मॉडिफाई करना पड़ेगा? यस, दिस इज ऑल अबाउट SA 510। बोलो, इजी है? वेरी इजी? यस। चलो, हर चीज का ट्रिक होता है, कैसे कोई चीज पढ़ाई करना। ओके, इसका ही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यस, तो चलो मैं लिखवा देती हूं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपके साथ आज नहीं लिख पाऊंगी, प्लीज कोऑपरेट करना। द पेन इज नॉट कोऑपरेटिंग विथ मी टुडे। जैसे ऋषभ ने बोला, शायद सिस्टम भी थक गया है। Okay, give the headline. SA 510 initial audit engagements dash opening balances. Initial audit engagements, 1 को हाईलाइट करो, मतलब आपको पता चलेगा 1 और इनिशियल को, मतलब मैम ने कैसे आपको याद दिलाना है? ओपनिंग बैलेंसेस, फर्स्ट हेडलाइन स्कोप, फर्स्ट financial statements of prior period, financial statements of prior period not audited, or number 2, audited by predecessor auditor, audited by predecessor auditor, PREDECESSOR. Done? Okay, next line.
स्कोप के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव. टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence as to whether under that, number 1, opening balance contain misstatement affecting current period financial statements. इतने जल्दी हो गया? नहीं, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, शॉर्टकट्स नॉट अलाउड, लगा ही था मुझे. Second point, accounting policies consistently applied and changes, if any, properly accounted, presented and disclosed as per applicable financial reporting framework. ओके अब अगला हेडलाइन होगा ऑडिटर्स प्रोसीजर्स, जहां पे आपके बुक में ये जो चार्ट है, मैं आपके लिए ओपन कर देती हूँ. ये चार्ट आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ऑडिटर्स प्रोसीजर्स. और ऑडिटर प्रोसीजर होने के बाद नेक्स्ट हेडलाइन क्या होगा? कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. उसका चार्ट भी है यहाँ पे आपके पास अवेलेबल. यस, पर आपको अभी लिखना है आपकी नोटबुक में. कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. नो होमवर्क प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आपको बहुत सिंपल लगता है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे.
डन। दोनों लिखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ संदीप? डन। इजी है। At least you have begun to feel it easy. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Done? Yes. To all those watching online, are you done? हाँ, अच्छा, हाँ,
हाँ हाँ, आप लोगों का मुझे पता है। हाँ हाँ, सीबीएसई वालों को। चलेंगे आगे? ओके, यस। तो आप बताओ, अब तक हमने कौन से ऐसे देखे? ऐसे 500 तो जनरली स्पीक्स अबाउट OICAI प्लस 2R, करेक्ट? यस। उसके बाद ऐसे 501 जो स्पेसिफिक 3 चीजों के बारे में बात करता है, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? 505 मिरर इमेज, एक्सटर्नल कंफर्मेशंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज। फिर उसके बाद इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स 510, ठीक है। अब हम आगे करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऐसे 520। ओके, आर यू ऑल रेडी? ओके, यस, ऐसे 520। अब समझते हैं कि ये ऐसे 520 हमको किसके बारे में बता रहा है। ओके, यस। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, तुम बताओ 2 और 2 कितना होना चाहिए? पर 2 और 2 को 4 नहीं 5 कहा जाता है। बोलता है ना, ये 2 और 2 कैसे है? 5 के बराबर है। समझ में आया? यस, यही तो हमको चेक करना है कि अगर कार है तो डेप्रिसिएशन होगा, अगर 2 और 2 है तो 4 होना चाहिए, कहीं 5 तो नहीं किया। समझ में आया? अगर एम्प्लॉइज है तो वैसी सैलरी भी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? यस, यस। तो इसमें हमको क्या ढूंढना है? इसमें हमको फ्लक्चुएशंस ढूंढना है कि क्या कहीं कोई फ्लक्चुएशंस है। ओके, फ्लक्चुएशंस किसमें, कैसे? वाया कैलकुलेशन, हमको कैलकुलेशन करके। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या है? यस, रिकैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कुछ फ्रेश कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, कोई रिकैलकुलेशन करने पड़ेंगे, बराबर है ना? यस, ओके। देन ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस मतलब क्या? इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन क्या है? इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं और आपके कोरोना में प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं क्लाइंट के। ओके, तो यहाँ पे फेक इनवॉइसेस की पॉसिबिलिटी है। समझ में आया? ओके, यस। पिछले 2 सालों से आपके प्रॉफिट अराउंड 10% के आसपास है, इस साल अचानक से 7% हो गया। इतना मेजर ब्रेक, बराबर है ना? इतना मेजर फॉल बैक, क्या रीजन है? क्या कुछ फ्रॉड हुआ है? ऐसे कितने एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए? ओके, क्या इससे क्या इंडिकेट होगा? कंपनी ने कुछ बड़ा नया ऑपरेशन चालू किया है क्या? कोई नया कुछ कुछ खरीदा है क्या? बराबर है, कुछ बल्क वाला एक्सपेंडिचर किया है क्या? राइट, कुछ तो रीजन होना चाहिए कि प्रॉफिट इतना कम हुआ, बराबर है ना? फिर रेशियोज करते हैं हम लोग, यस और नो? फिक्स एसेट रेशो, सेल्स टर्नओवर रेशो, बराबर है कि नहीं? इक्विटी डेट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, इन्वेंट्री रेशो, बराबर है कि नहीं? यस, ये रेशो हमको क्या बताते हैं? 2 आइटम्स के बीच का रिलेशन बताते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्लियर? इसलिए ऐसे कौन सा है हमारा? 2 और 2 5 नहीं होना चाहिए, 2 और 2 5 नहीं होना चाहिए। डू अंडरस्टैंड? यस। सो जब भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स का नाम आएगा आपको क्या याद रखना है? 2 और 2 5, इसलिए ऐसे 520। ओके, गेटिंग इट? यस। नाउ व्हाट डज दिस एनालिटिकल प्रोसीजर से? एनालिटिकल प्रोसीजर हमने कहाँ देखा है?
हमको ऑडिट प्रोसीजर करना है. ऑडिट प्रोसीजर करते वक्त पहले रैप करना है, फिर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, उसके बाद फैप करना है. फैप दो प्रकार के, कॉम्प्लायंस प्रोसीजर्स. कॉम्प्लायंस प्रोसीजर्स मतलब इंटरनल कंट्रोल को चेक करो, जो एफएस बनाने वाला है ना उसको चेक करो. ओके फिर उसके बाद आते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. सब्सटैंटिव प्रोसीजर मतलब सीएवी चेक करो, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस. इसका मतलब क्या चेक करो? यस, डेटा प्रोड्यूस्ड बाय अकाउंटिंग सिस्टम वेदर इट इज व्हाट रिलायबल, उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करो. बराबर है ना? मतलब एफएस के हर एक आइटम को चेक करना. और कैसे करना? यस, वाया टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स. समझ में आया? यस, तो हम ये वाला पार्ट अच्छे से इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में देखने वाले हैं. ओके यस, सो व्हाट डज दिस स्टैंडर्ड से कि आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स चेक करना मतलब आपको इवैल्यूएशन करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का. ओके सो इवैल्यूएशन किसका माय डियर स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, बिकॉज यू हैव टू चेक द सीएवी ऑफ transactions, and transactions are what measured via money measurement concept. Yes or no? Yes or no? So you have to evaluate the financial information. ठीक है? Okay. बराबर है ना? आपको क्या है? See, this analytical procedure is a type of substantive procedure. Substantive procedure मतलब क्या चेक करना? Actually FS के हर एक आइटम को चेक करना है या ना? बराबर है ना? FS में जो आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, are they recorded in money measurement concept? Yes. ओके तो आपको हर एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना है. देन एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशंस. व्हाट इज मेंट बाय प्लॉसिबल रिलेशनशिप्स? प्लॉसिबल रिलेशनशिप्स मतलब जो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं. Okay, so when we speak of analytical procedures, it is of two types. Either comparison करो या relationship establish करो. एक आइटम को एक आइटम को दूसरे आइटम के साथ, इंडस्ट्री के इंफॉर्मेशन के साथ, पिछले साल के साथ, ओके क्या करो? कंपेयर करो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो. क्लियर? अंडरस्टैंडिंग? ओके यस. अब सो एनालिटिकल प्रोसीजर करना मतलब क्या करना? ओके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिटेल में चेक करो, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करो, कंपैरिजन करो, रिलेशनशिप फाइंड आउट करो यूजिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. ओके फाइनेंशियल डेटा मतलब क्या? ओके यस, आप होटल हो, आपका क्लाइंट सपोज होटल चला रहा है, तो वो जो रूम का रेंट देता है दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. पर उसके पास जितने नंबर ऑफ रूम्स है दैट इज नॉन फाइनेंशियल डेटा. जब आप नंबर ऑफ रूम्स इनटू होटल रूम्स करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि उसका रेवेन्यू कितना होना चाहिए था. Yes or no? Yes or no? आप वेजेस पे कर रहे हो. ओके यस, आपके पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. आप जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका सैलरी वेजेस कितना होना चाहिए. yes or no? So analytical procedures is evaluating financial information and analysis of plausible relationships using financial and non-financial information. So analytical procedure करना मतलब आप FS में दिए गए आइटम्स के बीच में फ्लक्चुएशंस को ढूंढो कि क्या आइटम आप वरायंस करते हो कि नहीं करते हो. सेल्स वरायंस, मटेरियल वरायंस, लेबर वरायंस, कॉस्ट वरायंस, यस और नो? फिक्स कॉस्ट वरायंस, वेरिएबल कॉस्ट वरायंस, हाँ या ना? उसमें आप क्या करते हो? उसमें आपका पास एक स्टैंडर्ड डेटा दिया होता है, उस स्टैंडर्ड डेटा को आपको एक्चुअल डेटा के साथ कंपेयर करना है और फिर देखना है उसका मूवमेंट फेवरेबल था या वेरिएंस एडवर्स था. बराबर है कि नहीं? बिल्कुल यही पे ऐसे करना है. ओके आपको कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, एक्सपेंस कितना होना चाहिए था, इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए थी. समझ में आया? आपका करंट एसेट रेशियो कितना होना चाहिए था, करंट रेशियो सॉरी, और कितना एक्चुअली है. इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएशंस ढूंढो, वरायंस ढूंढो.
और फिर वरायंस ढूंढने के बाद उसके डिटेल में जाओ कि ये वरायंस क्यों आया, क्योंकि क्या इसके पीछे किसी के फ्रॉड की इंटेंशन थी, ओके क्या ये अनइंटेंशनली गलती से हुआ है, बराबर है ना, कि अगर एक जगह पे गलती है तो इसका बाकी कौन से आइटम्स पे इसका इफेक्ट आया होगा, यस और नो, राइट। सो आइडेंटिफाई द फ्लक्चुएशंस एंड investigate the fluctuations identified. Clear? Doing all this is nothing but analytical procedures. Clear? Yes? Okay? अब ये कैसे करेंगे हम? Via comparison और via relationship. Comparison किसके बीच में? आप prior periods के साथ compare करो, ओके आप प्रायर पीरियड्स के साथ कंपेयर करो, आप एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स के साथ, मतलब कितना बजटेड स्टैंडर्ड जो हम सेट करते हैं कि नहीं, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, हमने जो एंटिसिपेट किया है, हमने जो सोच के रखा है कि इतना ही होना चाहिए, ओके तो आपके रिजल्ट्स क्या आए हैं, अंडरस्टैंडिंग, ओके और इंडस्ट्री के इंफॉर्मेशन के साथ इसको क्या करो, कंपेयर करो। क्लियर? यस, ओके यस। अब ये कंपैरिजन सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। क्लियर? ओके फिर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो, फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार एंड डेप्रिसिएशन, बराबर है ना, फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यस, ओके डू यू अंडरस्टैंड, ओके यस, दिस इज नथिंग बट एनालिटिकल प्रोसीजर्स। बताओ डिफिकल्ट है, लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट जाता है, नो, यस। अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी यूज्ड एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर कब करना है हमको, प्रिलिमिनरी स्टेज पे, जब हम प्लान करते हैं ना ऑडिट, तभी भी हमको देखना पड़ेगा ना, बराबर है कि नहीं, क्योंकि सी फॉर एग्जांपल अगर एसेट्स दिख रहा है कार पर डेप्रिसिएशन अगर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, तो हमको डिटेल में चेक करना पड़ेगा, यस और नो, तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे भी करना पड़ता है। एंड एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट आल्सो आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स करना पड़ता है, और एंड में ओवरऑल कंक्लूजन देते वक्त भी, ओके फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये तो एंड में कैलकुलेट होता है, बराबर है ना, इसके ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर्स की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रिलिमिनरी स्टेज में मतलब व्हाइल अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स बिजनेस, बराबर है ना, से फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट होटल चलाता है, ओके तो उसके पास कितने रूम्स है, ओके यस, वो टेंटेटिव किसके साथ, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, ओके कॉम्पिटिटर्स के प्रॉफिट्स कैसे हैं, उनके पास कितने रूम्स हैं, उनका कलेक्शन कितना हो रहा है, उनका टर्नओवर कितना हो रहा है, वो कौन से फैसिलिटीज दे रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में आपका क्लाइंट क्या कर रहा है, क्या आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, यस और नो, yes, so at the time of understanding client's business also you have to employ analytical procedures, yes or no, और ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा के हमको पहले एट द स्टार्टिंग में पोटेंशियल रिस्क के बारे में पता चलता है कि एक्चुअल रिस्क के बारे में, पोटेंशियल रिस्क, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग, यस। सो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हमको कब यूज करना है, at the planning stage, okay, while understanding client's business and while identifying potential risks. फिर at the time of performing audit, okay, जब आपको क्या करना है, sufficient and appropriate audit evidence इकट्ठा करना है, तो आप क्या करते हो, further audit procedures करते हो। further audit procedures कितने प्रकार के हैं, दो, कौन से, test of details, वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बराबर है ना, तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप इंडिविजुअली भी हैंडल कर सकते हो, पर अगर आपको टेस्ट ऑफ वाउचिंग वेरिफिकेशन के साथ साथ एनालिटिकल प्रोसीजर्स करना है तो भी आप कर सकते हो, ओके यस। सो यू कैन जस्ट परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल्स और यू कैन जस्ट परफॉर्म सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, और आप दोनों की मदद से भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर सकते हो। क्लियर, यस, ओके। और जब किसी ऑडिट प्रोसीजर का रिजल्ट आता है उसको इन्वेस्टिगेट करना, मतलब ये फ्लक्चुएशंस को इन्वेस्टिगेट करना, यस और नो, यस, तो इसके वक्त भी आपको क्या आएगा, आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स हेल्प करने के लिए आएगा, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करता है,
ये किस पे डिपेंड करता है? व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन एनालिटिकल प्रोसीजर्स एम्प्लॉय करना है या नहीं करना? इट डिपेंड्स ऑन सुटेबिलिटी ऑफ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. क्या उस सिचुएशन में एनालिटिकल प्रोसीजर आपको हेल्प कर सकता है या नहीं? ओके, यस. देन ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स एज टू वेदर इट इज प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है. देन यस, अब आगे रिलायबिलिटी ऑफ डेटा टू बी कंपेयर्ड. अगर जिस डेटा के साथ हमको कंपैरिजन करना है अगर वो रिलायबल ही नहीं है तो क्या हम कंपैरिजन करके एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते. ओके, यस. तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि जो सोर्स जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो क्या वो इंडिपेंडेंट है? अगर इंडिपेंडेंट है तो रिलायबिलिटी ज्यादा. ओके, क्या वो इंफॉर्मेशन कंपेरेबल है? कंपेरेबल है तो आप उसको कंपेयर करो. रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या वो बजट्स आपके पॉइंट के लिए रेलेवेंट है? ओके, क्या आप इस जिस एफएस पे भरोसा कर रहे हो क्या वो ऑडिटेड है या नहीं? बराबर है ना? दीज फैक्टर्स विल डिटरमाइन एज टू वेदर आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज करना है या नहीं करना. समझ में आया? ओके, देन एक्सपेक्टेशंस. ओके, यस. टू बी डेवलप्ड फॉर रिकॉर्डेड वैल्यूज मतलब क्या? कोई इंफॉर्मेशन अगर रिकॉर्डेड है ओके, तो वो किस प्रकार से रिकॉर्ड है, एक्चुअली क्या रिकॉर्ड हुई है और हमारे एक्सपेक्टेशन क्या थे. ओके, यस. देन it should be precise so that the risk of material misstatement can be identified. Then अगर there is difference between expected and recorded values मतलब अगर variance है बच्चों तो आपको क्या करना पड़ेगा? Yes, अगर high risk involved है, बराबर है ना? high risk involved है तो further audit procedures detailed होने चाहिए. बराबर है कि नहीं? Yes, ठीक है. अगर रिस्की आइटम्स के लिए डिफरेंस कम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इट इज ओके. बराबर है कि नहीं? पर डिफरेंस अगर ज्यादा है तो डू यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इनटू द फ्लक्चुएशंस? एब्सोल्युटली यस. समझ में आया? यस. एंड यू हैव टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी of risk of material misstatement. Why? Because it is a risky matter. Okay, yes. Investigating results of audit procedures, auditor has to identify the fluctuation and have to investigate between the inconsistencies. Clear? Yes. कैसे करेगा? Auditor inquire करेगा with management और other audit procedures perform करेगा. Okay, yes. So now अगर मैं कहती हूँ कि performing stage पे okay, audit procedures help us to obtain relevant and reliable audit evidence. So which are the factors determining? These are the factors which determine. समझ में आया? Okay, yes. अब अगर audit procedures के results आए तो auditor को क्या identify करना पड़ेगा? Fluctuation है क्या? Okay, yes. ये वो कैसे कर पाएगा? Inquire with management and other audit procedures करके. Clear? Yes. अब एंड में उसको एनालिटिकल प्रोसीजर कैसा यूज करना है? कोरोबोरेटिंग कंक्लूजन्स. कोरोबोरेट करना मतलब सपोर्ट करना. आपके कंक्लूजन्स को सपोर्ट करता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ओके, देन व्हाटएवर एफएस कंसिस्टेंट व्हाटएवर नहीं वेदर एफएस कंसिस्टेंट विथ एंटिटी. आपके एंटिटी के साथ एफएस कंसिस्टेंट है या नहीं ये अपने को एनालिटिकल प्रोसीजर्स बताता है एंड एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग एन ओपिनियन. क्लियर? यस. एंड दिस इज नथिंग बट ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स. टेल मी, इज इट इजी? इज इट वेरी 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 इजी? यस, yes. So here our analytical procedures come to an end. Okay, yes. So do you want to take it down? You have to. Sorry, I don't want to listen to anything. आपका ऑफिशियल टाइम 6:45 है, उसके लिए मैं आपको 6:30 छोड़ती हूँ एंड इट इज नॉट इवन 6:15 राइट नाउ. कम ऑन, जो आपके टारगेट्स है वो आपको अचीव करने ही पड़ेंगे. कम ऑन. यस, मेहनत किए बिना किसी को भी फल नहीं मिलता. Come on.
Yes, start writing. एक्चुअली मैं आपको एक्चुअली ये पढ़ाना भी चाहती हूँ, तो पहले लिख लोगे कि पहले हम स्टैंडर्ड पढ़ ले एक बार? हाँ, स्टैंडर्ड पढ़ ले एक बार. यस. ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स. क्या बोला गया है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब क्या? इवैल्यूएशन ऑफ financial information, okay, through analysis of relationship among both financial and non-financial data. Okay, yes. क्या क्या है? comparison करो, anticipated results, बराबर है ना? industry information के साथ comparison करो. Okay, yes. And it can either be simple comparison or complex analysis. Okay, yes. What are the objectives of the auditor? क्या होंगे objectives of the auditor? Employing analytical procedures at planning stage, performing stage and at the time of drawing conclusions. ठीक है. अब yes, suitability. What is the suitability of substantive audit procedures? Come on, performing stage पे वो suitability है या नहीं है, हमको ये देखना पड़ेगा. बराबर है ना? Yes. हम कैसे चेक करेंगे? Whether it is predictable over time. बराबर है ना? Yes. हम प्रिडिक्ट, सी अंडरस्टैंड, अगर कोरोना की वजह से अचानक से आपने ऑनलाइन बिजनेस चालू किया, तो क्या पहले आपका ऑनलाइन बिजनेस था? नहीं. तो क्या आप कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं. बट आप ऑनलाइन बिजनेस में आ गए और 3-4 साल आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो क्या फिर कंपैरिजन रिलेशनशिप होगा? यस. सो इट शुड बी प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम. समझ में आया? ओके. यस. देन एग्जाम्पल दिया है उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का. देन रिलायबल होना चाहिए. रिलायबिलिटी. ओके. यस. आप जिस सोर्स से इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो रिलायबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ओके. देन इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल. ओके. इट शुड बी रेलेवेंट एंड देयर शुड बी कंट्रोल. ओके. मतलब फॉर एग्जाम्पल इट शुड बी ऑडिटेड. समझ में आया? ओके. यस. फिर इसके साथ आप जो एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर रहे हो, इट शुड बी प्रिसाइज. इफ डिफरेंस इज देयर, इन दैट केस देखो रिस्की आइटम्स के लिए डिफरेंस है क्या? इन दैट केस क्या होना चाहिए? डिफरेंसेस शुड बी लो. और अगर डिफरेंस इज मोर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. समझ में आया? हैव वी कवर्ड ऑल दीज पॉइंट्स इन आवर चैट? Yes. Will chat give you a better understanding? Yes. So come on, let's take it down. Chalo. हाँ हाँ. पूछने के लिए भी शर्म आती है आपको? रैप का फुल फॉर्म? बोल. रिस्क. आगे क्या? नेहा. सो सिंपल. अभी तो बोल बोल के रात को नींद में भी आपको आना चाहिए इसका आंसर. टू ऑल दोज ऑनलाइन, कल शायद मेरा वीडियो ऑन नहीं रहेगा, पर हम कल क्लास लेंगे. इट विल बी एट 10:30 इन द मॉर्निंग. आफ्टरनून का क्लास नहीं है.
Analytical procedures. अच्छे से लिख के लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है, कई बार इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बात तो सही है, कौन सा ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पे सच्ची मुझे रिसर्च करना चाहिए. इसका वीडियो बनाऊंगी तो सोचो यूट्यूब पे कितने व्यूज मिलेंगे. लोग ये वाला वीडियो ज्यादा देखेंगे. डन. डन. बहुत बड़ा है चार्ट, टाइम लगने वाला है. कम ऑन. हॉरिजॉन्टल पेज पे लिखो, इट विल फिट बेटर. हाँ. हाँ, when analytical procedures. Please take this down. It is a very important standard.
corroborating, supporting. corroborating conclusions मतलब supporting conclusions. अपने जो conclusions है उसको analytical procedures के results support करने चाहिए, corroborate करने चाहिए. Huh? Forming an opinion. Analytical procedures. वो है ना चार्ट में बैठ ही नहीं रहा था. I was trying to write the full forms. हाँ करेक्ट है. यहाँ पे आएगा ऑडिट प्रोसीजर. बाकी हर जगह एनालिटिकल प्रोसीजर्स. corroborating जब अपने एक लेक्चर चालू हो जाएंगे तो 6:45 के पहले मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ. 6:45 अभी बता देती हूँ. क्या बोल रहे हो आप? रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, बजट्स. हाँ, relationship expenditure for PSU, public sector undertakings.
Done, everyone? Okay, so see you all tomorrow, same time in the morning. At what time? 10:30. Bye-bye and take care.